Hello everyone. Our today's topic is central bank and its function. First of all, introduction of central bank. A universal monetary institute in modern times. So central bank is an universal monetary institute in modern times. It constitutes the apex of the money structure of an economy. It means it is the highest monetary authority of any country. It acts as the leader of the money market. So the central bank is the leader of money market in the economy. It supervises, controls, and regulates the activities of commercial banks. So the central bank is the supervisor, controller, and regulator of all commercial banks. Now, the examples of central bank are: in India, it is Reserve Bank of India. In USA, it is Federal Reserve Bank. In UK, Bank of England, and in Pakistan, Bank of Pakistan. So these are the example of central banks. In India, Reserve Bank of India is the Central Bank of India. Now, how we will define the central bank? Central bank is an apex body that controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary system of the country. So central bank is the highest monetary authority in the country, which controls, which operates, which regulates, and directs the entire banking system or monetary system in the economy. तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे ऑपरेट करता है, उसे डायरेक्ट करता है, उसे सुपरवाइज करता है और उससे रिलेटेड डिफरेंट रेगुलेशंस है वो बनाता है. नाउ what are the functions of central bank? The functions of central bank are classified into two categories. The first category is monetary functions and the second category is non-monetary functions. So we will discuss here all the functions. First of all, monetary functions like issue of currency notes, banker to the government, banker is bank, credit controller, custodian of foreign reserve. Similarly, non-monetary functions like bank supervision, lender of last resort, clear house function. So what are the functions of central bank? We will discuss now. The first function is issue of currency notes. So the central bank is the sole authority to issue currency notes. It means the central bank is the only authority in the country which can print or issue currency notes. Notes issued by central bank is unlimited legal tender. It means सेंट्रल बैंक ने जितने भी नोट इश्यू किए हैं, करेंसी नोट्स इश्यू किए हैं, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं. इसका मतलब ये है कि उसको कोई एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता. ठीक है, जैसे कॉइन्स हैं तो कॉइन्स को कई बार क्या होता है एक्सेप्ट करने से डिनाई भी किया जा सकता है. जैसे मान लो बड़ी पेमेंट आपको करनी है, 1 लाख रुपए आपको पे करना है और आप 1 रुपीज के कॉइन लेके जाओ तो उसे क्या होगा, सामने वाला लेने से मना भी कर सकता है. So the coins are limited legal tender, but the currency notes issued by the central bank are unlimited legal tender. In India, the central bank means Reserve Bank of India issues notes of rupees 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and rupee 2000 at present. So this is the first function of central bank, that is the issue of currency notes. So the central bank is also called issuing authority. Now the second function is banker to the government. Central bank acts as bank, agent and advisor to the government. तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 तरह के काम करता है: एज ए बैंक, एज एन एजेंट और एज अ एडवाइजर. As a bank, it accepts deposits, makes payments and grants loans to the government.
तो जैसा बैंक का काम होता है जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक्स करते हैं, वैसे ही जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, पेमेंट्स करता है और उसको लोन देता है। यहाँ पे ध्यान देना आपने कि जो कमर्शियल बैंक हैं और सेंट्रल बैंक हैं, दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जनरल पब्लिक से डील करते हैं, जबकि जो सेंट्रल बैंक है जैसे कि आरबीआई वो जनरल पब्लिक से डील नहीं करता। ठीक है। एंड एज एन एजेंट इट सेल्स एंड परचेज सिक्योरिटीज टू मैनेज पब्लिक डेट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसको सेल एंड परचेज सेंट्रल बैंक करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एंड द फोर्थ इज एज एन एडवाइजर इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू मैनेज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट को मैनेज करने के लिए इट मीन्स मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज़्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कम है तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ानी है, उससे रिलेटेड डिफरेंट पॉलिसीज हैं वो फ्रेम करता है जो सेंट्रल बैंक है। तो गवर्नमेंट के लिए 4 काम हो गए, बैंक के रूप में, एजेंट के रूप में, सॉरी 3 काम हो गए, बैंक के रूप में, एजेंट के रूप में, एडवाइजर के रूप में। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज banker's bank. It means bank of other banks. So central bank acts as bank, agent, supervisor of other banks. तो अदर बैंक्स के लिए भी इसके मेनली रूप से 3 काम है, एज ए बैंक, एज एन एजेंट और एज अ सुपरवाइजर। एज अ बैंक इट परफॉर्म्स 3 फंक्शंस। बैंक के रूप में जो अदर कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए 3 काम करता है। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज इट कीप्स कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को कुछ अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास या अपने कहीं सेंट्रल बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, जिसको अपने बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो इस तरह से जो कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल बैंक्स के पास रहते हैं। सेकंड इज इट एक्ट्स एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। Lender of last resort means when any bank faces financial crisis, then it approaches to central bank to give loans. If any bank faces financial crisis, then it approaches to central bank and central bank provides its loan at lower interest rate so that the bank can come out from the financial crisis. So this is the second function for the commercial banks as a bank. Now third is as an agent it clears interclaims of banks. This is called clearing house function. अब यहाँ पे इस क्लियरिंग हाउस फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि 2 बैंक हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक है और एक SBI है। अब दोनों के बीच में भी क्या होगा? ट्रांजैक्शंस होंगे। तो अब जैसे पंजाब नेशनल बैंक के पास SBI का कोई चेक आया, सिमिलरली SBI के पास पंजाब नेशनल बैंक का चेक आएगा, तो उनको कैसे क्लियर होगा? वो आरबीआई की ब्रांच में क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास दोनों ही बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं। सो जो इंटर क्लेम्स हैं बैंक के वो आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्लियर करता है, जिसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। एंड द लास्ट फंक्शन इज एज एन सुपरवाइजर इट सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज लाइक branch expansion, liquidity of assets, managing CRR and SLR. CRR, cash reserve ratio, it means a minimum percentage of the deposits of commercial banks which they park with RBI, that is called CRR. SLR, statutory liquidity ratio, it means a minimum percentage of the deposits of commercial banks which they keeps with themselves, जो अपने पास रखते हैं कुछ परसेंटेज, ठीक है, उसको SLR बोलेंगे। और कुछ परसेंटेज अपने डिपॉजिट का आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं, उसको CRR बोलेंगे। तो ये थे बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं। नाउ द थर्ड फंक्शन इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक is empowered to regulate money supply in the economy through its monetary instruments. अब मार्केट में, मनी मार्केट में मनी सप्लाई कितना है, ज़्यादा है या कम है, उसको रेगुलेट करने का काम है वो सेंट्रल बैंक करता है। और इसके लिए
इसके जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, उसके थ्रू ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला इंस्ट्रूमेंट्स है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर बैंक्स फॉर लॉन्ग रन। तो बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों को लोन देता है लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए लोन देता है जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट। तो अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो क्या करेंगे? मनी सप्लाई को कम करेगा आरबीआई, क्योंकि उसे क्या करना है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। सो टू डिक्रीज द मनी सप्लाई बैंक रेट इज इंक्रीज्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है और उसको कम करना है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। बैंक रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन कम लेंगे। ठीक है, एक जो इंस्ट्रूमेंट है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का लगभग इफेक्ट ऐसा ही है, तो उनको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला बैंक रेट है, इसको हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। अगर बैंक रेट को बढ़ाएगा आरबीआई तो उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन कम लेंगे। जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन कम लेंगे तो उनके खुद के जो डिपॉजिट हैं वो थोड़े कम होंगे, जिससे क्या कि वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे, और जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को ध्यान से आपको याद रखना है कि अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे, उनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगा। जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी मार्केट में मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इट मीन्स अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है देन बैंक रेट इज डिक्रीज्ड। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मार्केट में मनी सप्लाई कम है, तो मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो मनी सप्लाई का मतलब यही है कि लोगों के पास पैसा कितना है। अगर लोगों के पास कैश कम है तो मार्केट में कैश डाला जाएगा, और मार्केट में कैश डालने के लिए क्या किया जाएगा? बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा, और बैंक रेट को कम करेंगे तो कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा लोन लेंगे आरबीआई से, उनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा और वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करेंगे, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो इनके मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट, मैं अभी इनके नाम बताऊंगा, एक एक करके डिस्कस करूंगा, उनको यूज किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। नाउ द सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज रेपो रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर बैंक्स फॉर शॉर्ट रन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर शॉर्ट रन के लिए लोन दिया है आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को तो उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोला जाएगा? रेपो रेट। और यदि लॉन्ग रन के लिए दिया है तो बैंक रेट। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, बैंक रेट फॉर लॉन्ग रन एंड रेपो रेट फॉर शॉर्ट रन। तो यहाँ पे आरबीआई किसको लोन दे रहा है? कमर्शियल बैंक को शॉर्ट रन के लिए। तो इसका भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई पे। इफ देयर इज एक्सेस मनी सप्लाई इन द मार्केट then RBI has to decrease the money supply. Then to decrease the money supply repo rate is increased and vice versa. तो अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन कम लेंगे, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा मतलब इसका रिवर्स बताना है कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो क्या होगा? रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा लोन लेंगे आरबीआई से, उनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और जब ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था सेकंड इंस्ट्रूमेंट। नाउ थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज रिवर्स रेपो रेट। अब इसके नाम से पता चलता है रिवर्स रेपो रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम अगर कंपेयर करें तो रेपो रेट्स में, रेपो रेट का मतलब है यहाँ आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, लैंडिंग कर रहा है, और रिवर्स रेपो रेट में वो बोरो कर रहा है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में क्या कर रहा है?
बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से, तो इसलिए इसको हम रिवर्स रेपो रेट कह रहे हैं, क्योंकि ये रेपो रेट का बिल्कुल अपोजिट है, रिवर्स है। It is the rate of interest at which RBI takes loan from commercial banks. If there is excess money supply in the market, then RBI has to decrease the money supply, and to decrease the money supply, reverse repo rate is increased. यहाँ पे ये ध्यान देना है कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। अब इसका भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक को आरबीआई को लोन देने में ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को ज्यादा लोन देंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, वो आरबीआई को ज्यादा लोन देंगे। अब जब उनका डिपॉजिट्स हैं वो लोन में चली जाएंगी तो उनकी इनिशियल डिपॉजिट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि आरबीआई को पैसा दे दिया उन्होंने। तो जनरल पब्लिक के लिए जो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं वो कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कैश रिजर्व रेशियो, जो कि हमने पहले इस स्लाइड में पढ़ा था, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मीनिंग क्या है इसका, अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स विच दे पार्क विद आरबीआई इज कॉल्ड CRR। कमर्शियल बैंक्स को अपनी डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, 6%, जैसे इंडिया में अभी 6% है, तो टोटल डिपॉजिट्स का 6% जैसे इंडिया में है अभी, ऐसे वो उनको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम CRR बोलते हैं। अगर एक्सेस मनी सप्लाई है मनी मार्केट में, देन टू डिक्रीज द मनी सप्लाई CRR इज इंक्रीज्ड। ठीक है, CRR को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसका भी सेम इफेक्ट पड़ेगा, CRR इंक्रीज हो गया तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, इट मीन्स अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो CRR को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, meaning a minimum percentage of deposits of the banks which they have to keep with themselves as cash reserves or liquid assets is called SLR, statutory liquidity ratio। टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपने पास कैश रिजर्व्स के रूप में या फिर लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, SLR। ठीक है, इसका भी सेम इफेक्ट पड़ेगा कि अगर एक्सेस मनी सप्लाई है मार्केट में तो उस मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए SLR को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कमर्शियल बैंक को कैश रिजर्व्स अपने पास ज्यादा रखने पड़ेंगे और वो लैंडिंग कम कर पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे, जिससे मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मींस सेंट्रल बैंक और आरबीआई सेल्स एंड परचेज सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको ओपन मार्केट में या तो सेल करता है आरबीआई या परचेज करता है। अब अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो उससे क्या होगा, लोगों के पास वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी बॉन्ड आ जाएगा और मनी है वो किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, बैंकों के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अगर वो परचेज करता है सिक्योरिटीज को तो आरबीआई जब परचेज करेगा तो उसे ओपन मार्केट में पैसा डालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मीनिंग बिल्कुल सिंपल है कि आरबीआई सेल्स एंड परचेज सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट when there is excess money supply in the market, and to decrease the money supply government securities are sold। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो मनी फ्लो है वो ओपन मार्केट से बैंकों की ओर आएगा, आरबीआई की ओर आएगा, जिससे मनी
सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, और यदि मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो ओपन मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया जाएगा, जिससे मनी फ्लो बैंकों से मनी मार्केट में बढ़ेगा। क्लियर? एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी कैप्ड एंड लोन अमाउंट ऑफ द बोरर। ठीक है, जो बोरो करने वाला है वो कितना लोन ले रहा है और उस लोन के बदले में उसने क्या सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट करवाई है बैंकों के पास, जिसको कोलेटरल भी बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 रुपीज की सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास सॉरी बैंकों के पास रखेंगे तो वो हमें 80 रुपीज का लोन देगा। दोबारा समझ लीजिए कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो 100 रुपीज की सिक्योरिटी रखने पर 80 रुपीज का लोन मिलेगा। ठीक है, इसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलेंगे, जो लोन और सिक्योरिटी कैप के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी कैप एंड लोन अमाउंट ऑफ द बोरोवर। टू डिक्रीज द मनी सप्लाई मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड। सेम यहाँ पर भी सेम है कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में एक्सेस में है, उसे डिक्रीज करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे पिछले अभी हमने एग्जांपल में देखा कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो 100 की सिक्योरिटी रखने पर 80 रुपीज का लोन मिलेगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया गया, 30% कर दिया, तो इसका मतलब 100 रुपए की सिक्योरिटी रखने पर 70 रुपीज का लोन मिलेगा। अब जब 70 का लोन मिलेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एक्सेस मनी सप्लाई है मनी मार्केट में, उसे डिक्रीज करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। तो अब जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, CRR है, SLR है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को छोड़ करके बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो जितने भी रेट्स एंड रेशियोज हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो जितने भी रेट्स एंड रेशियोज हैं इंक्लूडिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, उनको क्या कर दिया जाता है? डिक्रीज कर दिया जाता है। तो दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो रेट्स एंड रेशियोज को डिक्रीज करना है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो रेट्स एंड रेशियोज को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये थे आरबीआई के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो आरबीआई यूज करता है, सेंट्रल बैंक यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए हैं उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस को छोड़ करके बाकी सारे मनी सप्लाई से इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।